آئیے آج کے ہم خداوند خدا رب الفاظ کے نام کو جلال دیں، کیونکہ وہ عظیم خداوند ہے۔ آج خدا نے جو آپ کے لیے میسیج بھیجا ہے، خداوند کی مہربانی، خدا کی مہربانیاں انسان کے اوپر بے شمار ہیں، انمول مہربانیاں، عظیم مہربانیاں، موتیوں سے بھی قیمتی۔ بنی نوع انسان کو خدا نے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنے دل سے لگا لیا۔ اس نے کہا، ماں کے پیٹ سے لے کے سر کے بال سفید ہونے کے بوڑھا ہونے تک میں تجھے ہمیشہ سنبھالوں گا۔ اور خدا کا شکر ہے، ماں کے پیٹ سے خدا نے سیدھا سلامت، بالکل کوئی ٹنڈا نہیں بنایا، کوئی اندھا نہیں بنایا، کوئی اپاہج نہیں بنایا۔ خدا نے ہمیں بالکل 100% ایک ایک چیز ہماری آرگن اس نے برابر بنائی۔ اور جس طرح کہ داؤد کہتا ہے اپنے کلام میں، سام 139 ورس 17 میں کہتا ہے داؤد کہ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہیں جانتا۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے۔ خداوند خدا جس نے ہمیں، مجھے آپ کو سب کو بنایا، آج اس کی انمول مہربانیاں، برتیں، بخشے، رحمتیں، زندگی کی سانسوں کے لیے ہم اس کا شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنا بڑا فضل کیا۔ اور اس نے کہا کہ اگر میں ان کو، تیرے جتنے بھی منصوبے میرے لیے ہیں، اے خداوند، تیرے خیال میرے لیے بیش بہا ہیں۔ اگر میں ان کا مجموعہ گنوں تو وہ کہیں ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، اور میں جاگرتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ خداوند یسوع ناصری جس نے ہمیں قیمتی جان دے کے خرید لیا اور ہمیں اس نے اپنا بنایا، اپنے بیٹے بنایا، آج اس کی ساری انمول مہربانیوں برتوں آسمان چھوڑ کے زمین پر آ گیا۔ آج خدا کا کلام ہے، کو خاص ٹائٹل ہے ازائیا 54 ورس 8 اور 9 میں خدا نے کہا ہے، آئیے ہم پہلے اپنے سر کو چکوائیں، خدا کے حضور جھکیں، اپنے آپ کو اس کے آگے ہم ڈیل دیں، اپنے آپ کو اس کے آگے بکھیر دیں۔ قدوس 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 رب الفاظ، تو جو تھا، جو ہے، جو اول، جو آخر، جو ابتدا، جو انتہا، ہم سب کا خدا۔ آج کا اس میسج کے لیے جو تو نے اپنے بندے کو دیا، خدا تیری پوری مخلوق کے لیے جائے، اور تیرے ساری مخلوق پر تو نے اتنی مہربانیاں، اتنی برتیں، اتنی رحمتیں، اتنا کرم، اتنا ترس بنی نوع انسانی پر کیا کہ تو منٹ منٹ پر انسان کا بھلا کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے۔ ہر جگہ تو اسے اس کے لیے ترقی، اس کے لیے اچھائی، اس کے لیے بہتری، اس کے لیے جو اچھا ہے وہ سب کچھ تو نے بنی نوع انسان کے لیے کیا۔ بنی نوع انسان اور تیری خدمت کرے، اور تیرے نام چومے، اور تجھے دن کرے، اور تجھے مبارک ہے، اور تیری جگہ کرے، اور اس کلام کو تو ترتیب دے۔ پاک روح تو آ، میرا منہ بن جا، میری آواز بن جا، میری قوت بن جا، میں نہیں بلکہ تو مجھ میں، میری آواز نہیں تیری آواز ہو۔ یہ سب کچھ تیرے اعلیٰ بلند عظیم قدرت والے نام خدا یسوع مسیح نام کے وسیلہ سے مانگا پائے، تیرے شکر کرتے ہیں، آمین۔ جیسا میں نے کہا کہ خدا کی مہربانی، کائنڈنس آف گاڈ، یسایہ 54 ورس 8 اور 9 میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خدا تیرے نجات دینے والے خدا فرماتا ہے کہ قہر شدید میں میں نے ایک دم کے لیے تجھ سے منہ پھیرا چھپایا، پر اب میں اپنی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا، کیونکہ میرے لیے یہ نوح کے طوفان سے کا سا معاملہ ہے کہ جس طرح میں نے قسم کھائی ہے کہ پھر زمین پر نوح کا سا طوفان کبھی نہیں آئے گا، اسی طرح اب میں نے قسم کھائی ہے کہ نہ میں تجھ سے کبھی ازردہ ہوں گا، اور نہ میں کبھی تجھ کو گھڑکوں گا۔ خدا نے بنی نوع انسان، جس طرح آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جب بنی نوع انسان کے گناہ بڑھ گئے، بنی نوع انسان کی زندگی پولوشن ہو گئی، اس بنی نوع انسان کی اسمانوں تک پہنچی، تو خدا نے بنی نوع انسان کو تباہی کری ہے۔ آگے کہا کہ نوح کو بولا کہ تو کشتی بنا، اور نوح سے کہا صرف یہ کہ نوح کا طوفان اتنا بھیج دیا، پوری دھرتی، پہاڑوں پر، سب جگہ پر پانی پانی کر دیا، اور جب تک بنی نوع انسان ختم نہ ہو گیا، صرف 8 جانیں بچی تھی نوح کے ساتھ۔ پھر نوح نے جب کشتی لگ گئی پہاڑ پر، ٹک گئی، اور وہ 8 جانیں بچ گئی، نوح نے خدا کے حضور قربانی دی، اور سختی قربانی دی، خدا اس سے خوش ہوا۔
खुदा फिर पछताया कि मैं अब नूह जैसा कभी तूफान इस बनी नूह इंसान पर नहीं भेजूंगा। आज भी गुनाह बेशुमार बढ़ गया, बेशुमार गुनाह, बेशुमार गलतियां, बेशुमार कुताहियां, बेशुमार ऐसी खताएं हैं, अगर हम उसका हिसाब करें तो इंसान तौबा तौबा करता है, क्योंकि बदी आज भी बड़ी है, ये कहर शदीद आज भी बहुत है। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं तुझ पर अपनी अब्दी शफकत चढ़ाई है, इसलिए मेरा कहर कभी तुझ पर नहीं आएगा, मैं तुझे फिर से कभी नहीं घड़कूंगा, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। मेरा खुदा यीशु नासी, जो खुदा ने आसमान से अपने प्यारे बेटे को भेज दिया ताकि बनी नूह इंसान के साथ खुदा का प्यार और मिलाप करा दे, और बीच में से जो दीवार थी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। उस खुदा यीशु ने बनी नूह इंसान को बड़ी अपनी जान तक कुर्बान करके अपने प्यार में बस सींच लिया, ताकि ये बनी नूह इंसान खुदा के साथ और खुदा यीशु के साथ, उसके बेटे के साथ, पाकरू के साथ हमेशा तक जुड़ा रहे, ताकि उसके नाम को जलाल मिले। इसलिए हम सबको ये ज़रूरी है कि हम सब खुदा को अपना शख्सी निजात दिंदा मान के उसको दिल में बसा लें, अपनी रूह में बसा लें, अपनी जान में बसा लें, और उससे कहें कि हम तेरे हैं, ए बाप तू माफ़ कर दे, ए रब्बुल फाइज तू माफ़ कर दे। उसने हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया, और उसने अपने कलाम में कहा है, यूहन्ना 15 बाप उसकी 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है, और तुमको मकर किया कि जाकर फल लाओ, ताकि मेरे नाम से जो कुछ मांगो, जो कुछ चाहो वो तुम्हारी हो जाए। आज ये खुदा का ये कलाम जो खुदा ने मुझे दिया, बनी नूह इंसान ने खुदा बहुत गहरा प्यार करता है, बनी नूह इंसान को बहुत गहरा प्यार करता है, अपने बेटे को भेज दिया, और आज भी खुदा आसमान पर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ पर हर वक्त मेरी आप सबकी शिफायत करता है। अब बाप इन्हें माफ़ कर दे, ये साल भी नहीं दे, ये ठीक हो जाएंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। वो पूरी गुनाहों की ताकत रखता है, पूरा हर किस्म के गुनाह माफ़ करता है, लेकिन जो कोई पाक होली स्पिरिट के खिलाफ बात करेगा उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरा खुदा चाहता है कि आज ये बनी नूह इंसान जान ले कि बनी नूह इंसान को कैसे खुदा के साथ चलना है, किस तरह उसने चलाना है। उसके अपने हाथ से, सबसे बड़ी बात है कि बनी नूह इंसान को खुदा ने सबसे अपने हाथ से बनाया और अपना बेटा बना लिया। बीच में जो दीवार थी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी, ताकि खुदा और इंसान का हमेशा राब्ता रहे, और बनी नूह इंसान के लिए खुदा ने तौबा की तौफीक दी, ताकि वो खुदा की सारी अनमोल मेहरबानियों को हासिल करे। वो तो सदा रहम करने वाला, वो तो सदा तरस खाने वाला, वो तो सदा कर्म करने वाला, वो तो हमेशा हमारे साथ साथ रहने वाला, दिल की गहराई से आपको प्यार करता है। वो कहता है माँ बाप बहन भाई सब छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। शायद माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तेरी सोनी जलाली सूरत अपनी हथेलियों पर खोद के रखी है, तू मेरी नजर में जलील कदर है, इसलिए मैंने तुझ पर अब्दी मोहब्बत चढ़ाई है। इसलिए मैं खुदा की उन मेहरबानियों बरतों जो मेरा खुदा छोटी देता है, गारंटी देता है। वो कहता है यशायाह की किताब में कि मैं तुझसे कभी अज़ुरदा ना होऊंगा और तुझको ना गड़कूंगा तो चंगी तरह गड़ना, मारना, कुटना, अदमाया करना, लेकिन खुदा ने सब कुछ खुदा ने उसको बख्श दिया। और बनी नूह इंसान से कहा कि आज तू मेरा बेटा और बेटी है, मैं तेरा निजात दिंदा। आज भी वो खुदावंद बाप के दाने तर बैठकर हम सब की शिफायत करता है और कहता है कि बाप इन्हें अपने साथ रख ले। उसने अपने जलाल के लिए आप लोगों से कहा है, क्योंकि पहला करंथियों उसकी 6 बाप उसी 9 और 10 में क्या है, बदकार खुदा की बादशाह में दाखिल ना होंगे, फरेब ना खाओ, हरामकार, बुतप्रस्त, ज़नाकार, अय्याश, लौंडेबाज, ना चोर, ना शराबी, ना सूटेबाज, ना तुमते लगा, सब खुदा की बादशाह में दाखिल। लेकिन आज खुदा ने तौबा के सब तौबा करो, निजात पाओ, जिंदगी पाओ। अलानिया खुदा कहता है। अज़ाया 63 वर्स 7 में लिखा हुआ है,
मैं खुदावंद की शफ़क़त का जिक्र करूँगा, खुदावंद ही की सताइश का, उस सब के मुताबिक जो खुदावंद ने हमको अनायत की है, उस बड़ी मेहरबानी का जो उसने इसराइल के घराने पर अपनी ख़ास रहमत और फरोतन और शफ़क़त के मुताबिक ज़ाहिर की है। ये इसराइल के घराने पर, इसराइल के वसीला से सबको निजात, इसराइल के वसीला से सारी दुनिया की कौमें बरकत पाएंगी। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वसीला से सारी कौमों का बाप होगा और सारी कौमें उसे निजात पाएंगी। उसने कहा है, अपने कलाम में कहा है, उस बड़ी मेहरबानी का, रब्बुल फाज, बहुत ही अजीम और जलाली, मेहरबान, कदूस, रहमत वाला, बरकत वाला खुदावंद का खुदावंद, जिसने याकूब को माँ के पेट ही से सेलेक्ट कर लिया था और उसने उसके आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम आज से इसराइल होगा, यानी खुदा हमारे साथ होगा। इसलिए कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब की सारी जो खुदा ने अब्दियात किए थे उनके साथ चल रहे हैं। आज भी इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ जब उसका नाम लेके दुआ करने पर रोड के खड़े हो जाते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, मेरा खुदा, कुल कायनात का खुदा, बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह, शाह अजीम, सदा रहने वाला, सदा हमारे साथ चलने वाला, हमेशा की जिंदगी देने वाला वही अजीम बाप है। सब लोगों, सब गुनाह करो, तौबा करो, निजात पाओ, जिंदगी पाओ, कसरत की जिंदगी पाओ, क्योंकि रब्बुल फाज खुदावंद का खुदावंद, बादशाह का बादशाह कहता है कि सब गुनाह करो, मेरे पास आओ। उस सारी कौमों को, सारी दुनिया को, तमाम, जरूरी नहीं क्रिश्चियन, जरूरी नहीं, तमाम कौमों को कह रहे, सब दुनिया के लोगों, सब बहुत से दबे हुए लोगों, सब भूखे और प्यासे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निजात दूंगा। मेरा खुदा आज भी कामिल निजात देता है। याकूब को खुदा ने इतना प्यार दिया, याकूब को खुदा सरीहन मिलता था, और याकूब ने जब अपने मामू के पास से आ रहे थे तो खुदा के साथ उसने कुछ नहीं, बड़ा फरिश्ता भेज के खुदा अल्लाह सुबह से मिला और इतना बड़ी ने इंसान को प्यार किया, याकूब को, उसके 12 बच्चों को और उनके सारे बच्चों को खुदा ने उन्हें प्यार किया और कुश्ती करता रहा। जब सुबह 4 बज गए तो फरिश्ता ने बोला कि भैया तू मुझे जाने दे। वो कहता है, ना जाने नहीं दूंगा, जब तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इसराइल होगा। इवन उसने उसकी राइट हैंड की नस भी दबाई, लेकिन फिर भी याकूब ने नहीं छोड़ा। जब फरिश्ता ने उसे बरकत दी, फिर उसने कहा, तू, तेरा नाम इसराइल होगा, तू कौमों का बाप कहलाएगा। और आज भी पूरी बनी इसराइल के ऊपर खुदा का हाथ, पूरी बनी इसराइल कौम पर खुदा का कुदरत वाला हाथ, रहमत वाला हाथ, बरकत वाला हाथ। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि एक यहूदी को, एक इसराइल को लोग पकड़ के 10 लोग कहेंगे कि हम तेरे साथ जाएंगे, हमें पता कि तेरा खुदा जिंदा खुदा है और हम तेरे साथ चलेंगे, तू हमें अपने खुदा से मिलाएगा। वो ऐसी खुदा ने उन्हें नेमत दी है। इसलिए इसराइल को खुदा ने अपने जलाली हाथ में लेके उसे ममूर किया, मसा किया, कुल तोला हाथ दिया और उससे कहा कि तू मेरा बेटा है। और खुदा हमेशा, याकूब खुदा का प्यारा बेटा था, इसराइल खुदा का पलौठा बेटा है और सदा रहेगा। और हम उसके वसीला से, जितनों ने हमने ईमान लाया, जितनों ने हमने उसे कबूल किया, हम सब उसके बेटे बेटियां। और उसे कहा, जहां मैं हूंगा वहां मेरे बेटे बेटियां होगा, मैं जीता हूं, तुम सब मेरे साथ जीते होगे। इससे ज्यादा क्या हक है कि खुदा रब्बुल फाइज ने मुझे और आपको अपने बेटे बेटियां बना लिया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, लूका रसूल की इंजील उसका 6 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है, अगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो, बगैर नाउमीद हुए कर्ज दो, तो तुमको बड़ा अजर मिलेगा, तुम खुदा ताला के बेटे कहलाओगे। हालेलुया। कलाम में लिखा, अगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर नाउमीद हुए कर्ज दो, तो वो तुम्हारा अजर बहुत बड़ा होगा, तुम खुदा के बेटे कहलाओगे। क्योंकि वो नाशुकरों, बदों
पर मेहरबान है, जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहम दिल हो। हम सबको रहम दिल होना है, अपने दुश्मनों से भी रहम दिल होना है। भैया तू मेरे खुदा का बड़ा प्यारा बेटा है, ए बहन तू मेरे खुदा की बड़ी प्यारी बेटी है। अपना गुस्सा, अपनी गलतियां, अपनी नेगेटिव सोचे छोड़ दे। हर एक के लिए भलाई, हर एक के लिए अच्छाई, हर एक के लिए बेहतरी, हर एक के लिए खुदा की सच्चाई को ज़ाहिर करना है। हमने अपने खुदा के साथ चलना है, हमने अपने खुदा के साथ लेना है। उनको भी अपने खुदा की दावत देनी है कि खुदा का आज घर है, खुदा के घर में आज बात आप आएँ, मेरा खुदा आपसे कलाम करेगा और आप आए अपने दुश्मनों को बोले भाई रास्ते पकड़े, खुदा तेरे साथ है, खुदा तुझे बरकत देगा और खुदा तेरी भलाई चाहती है। और खुदा जो कमज़ोर है, बेशक जिनके पास पैसे हैं वो उनको कर्ज दे और ये ना सोचे कि वो देगा, कोई बात नहीं, खुदा उसका अजर हमें देगा। कैसे? जैसे हमारे जिंदगी और निजात के बानी ने अपने दुश्मनों को भी माफ़ किया था, वो सबसे भलाई और अच्छाई और जो बुजुर्गों में गिरफ्तार थे उनको भी छुड़ाता, तमाम गुनाहगारों को माफ कर देता करने वाला मंबा था। और अगर कोई गैर निजातिया तो जो कोई भी उसके पास आता, तौबा करता, निजात पाता और वो उसे अब्दी जिंदगी देता। ये अब्दी जिंदगी लेनी है, हमेशा की जिंदगी लेनी है। मैंने कहा ना कि जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। रोमियो 2:4 पे लिखा हुआ है, या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को न चीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी मौका देता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता, पहचानता और सुनता है। लेकिन वो बहुत ही मेहरबान खुदा है और तू अब जो आपको रास्ते की तालीम देता है, जो आता तू रास्ते पर राजा कबूल कर ले। तेरे सारे गुनाह, तेरे तेरे गुनाह चाहे वो कर्मजी बर्फ की मानो धो देगा, कितने भी गुनाह हो सारे वो धो देगा। और आप उसके पास आ जाए एक कामल दिल से, अपना बाप समझते हुए, जिस तरह बाप, हम दुनियावी बाप होते हुए अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं, वो आपके कहते हैं अब्बा माफ़ कर दे, पापा माफ़ कर दे। इसी तरह जब आसमानी बाप के पास जाते हैं तो जब उसे कहते हैं तो वो हमें माफ़ करता है, वो हमारे साथ होता है, वो हमारे साथ मौजा करता है, वो हमारे साथ आके हमें दिल से लगाता है। शाबाश मेरे बेटे। कलाम में लिखा हुआ है, इफ्सियों 2:6-7-8 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह में शामिल करके और यीशु मसीह में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों और उसके साथ उठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से यीशु मसीह में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की नहायती दौलत दिखाता है, बेइंतहा दौलत दिखाता है। फजल की दौलत, रहम की दौलत, करम की दौलत, मेहरबानी की दौलत और सबसे बढ़कर प्यार मोहब्बत की, शिफा का मंबा, प्यार का मंबा, रहमत का मंबा, जलाल का मंबा, मीठी मीठी बातों का मंबा, उस सब कुछ आपकी भलाई, सब कुछ आपकी अच्छाई के लिए चाहता है और आपको हमेशा सीधी राह दिखाता है, क्योंकि तुमको ईमान ही के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि ये खुदा की तरफ से मिली है। उसका अजीम वादा है कि जहाँ मैं हूँगा वहाँ मेरे बेटे बेटियाँ होंगे और मैं जीता हूँ, तुम सब जीते रहोगे। मेरा खुदा सदा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ है और आपको बरकत देगा, आपको अपनी सच्चाई से ममूर करेगा और आपकी ज़िंदगी में पाकड़ के फल लगाएगा और आपकी ज़िंदगी को भरेगा। तीतस 3:4-5 में लिखा है, क्योंकि हम भी बड़े निदान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बिरंगी ख्वाहिशों, ऐशो इशरत के बंधन में थे और बदखोई और हसद जिंदगी गुजारते थे, नफरत के लायक थे
आपस में कीना रखते थे। जब हमारे मनजी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उल्फत ज़ाहिर हुई तो खुदा ने अपना फिदिया दे के हमें अपने खून से धो दिया। हमें अपने खून से सर से लेके पाँव तक हमें धो दिया और हमें अपना बना लिया। हमें तो अपने खून के वसीला सींच लिया कि हम उसके खून खरीदे करते हैं। एक बारीक कीमत दी, आसमान से छोड़ के ज़मीन पर आपके लिए आ गया ताकि आप बच जाएं और आप नई ज़िंदगी पा जाएं, नई कूद पा जाएं, नई जोर पा जाएं। उन सब की ज़िंदगियों से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर, वो आप सबको अपने जलाल से ज़ाहिर करना चाहता है। आपके लिए हमेशा वो बेस्ट से बेस्ट सोचता है। अच्छे से अच्छा काम, अच्छे से अच्छी जगह आपके लिए मौके फराम करेगा, अच्छे से अच्छे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट आपके करेगा। और आप सिर्फ अपने खुदा जिंदा खुदा के आगे अपने आप को ढेल दें, अपने आप को बखेर दें, अपने दूसरे दोस्तों को भी, गैर मजहब के लोगों को भी खुदा के पास कि भाई ज़िंदगी पानी है मेरे खुदा के पास आ जा। अगर कामर शफा पानी है मेरे खुदा के पास आ जा। वो लंगड़ों को चलाता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो बुजुर्गों को भगाता है, वो कोड़ियों को पाक साफ करता है, वो मजबूरियों को आसमान से खजाने खोल के अपनी बर्तों से माला माल करता है, वो मायूसियों को शादबानी में तब्दील कर देता है। आ जाओ उसके पास, आ जाओ, आजा तू क्यों दूर खड़ा, हर पल का वही है खुदा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा उसके पास आ जाए। ये सन 2022 जो भी है आप सबकी भलाई के लिए, आप सबकी अच्छाई के लिए, आप सबकी बेहतरी के लिए आप खुदा रब्बुल फाज के पास आए और उसके चरणों में आके सीधा करें और उसे कहें कि अब्बा मैं आ गया, यहोवा मैं आ गया, बादशाह के बादशाह मैं आ गया। ये दिल तेरी पाक बन गया, ये दिल तेरी पाक कहकर, ये दिल तेरा पाक दरबार, ये दिल तेरी पाक तख्तगाह। अब बैठ जा तक दिल पे मेरे, तू हो मेरा बादशाह। किससे किसी की कोई टेंशन नहीं ले। मेरे खुदा के पास आके आप शाश विशाश हो जाएंगे। आपके चेहरे से उसका नूर ज़ाहिर होगा, आपके चलने फिरने से उसका जलाल ज़ाहिर होगा और उसकी गवाह बन जाए, ज़मीन की इंतहा तक उसके गवाह बन जाए कि जाके लोगों को बताएं कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। क्योंकि खुदा ने, मसीह यीशु ने जो इस जहान पर मेहरबानियाँ, बरकतें, रहमतें के दरवाजे खोले और बनी इंसान के लिए तौबा के सब दरवाजे खोले, निजात के दरवाजे खोले, और वो बादशाह का बादशाह, पानियों पर चलने वाला खुदा, आंधी और तूफान को रोक देने वाला खुदा, 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करने वाला खुदा, उसके सिजदों में लग जाए, उसके चरणों में लग जाए। उसने आपको बनाया, आपको अच्छी तरह जानता, आपको अच्छी तरह पहचानता, आपको अच्छी तरह आपके अपने जलाल में आपको अच्छी तरह घड़ा उसने माँ के पेट से आपको बिल्कुल कामल रासबाज बनाया था। लेकिन दुनियावी पोल्यूशन में बहुत सारे लोग खो गए। लेकिन जब मेरा यीशु आ गया, उसके खून में सब धुल गए। जब उसका खून लग जाता है अश्योरेंस आ जाती, जब उसका खून लग जाता है श्योरिटी आ जाती है, जब उसका खून में आ जाते हैं उसकी इंश्योरेंस आ जाती है कि मेरा खुदा मैं उसका खून में धुला हुआ उसका बेटा हूं। मेरी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा पोल्यूशन ना हो, मेरी जिंदगी में कोई ऐब ना हो, मेरी जिंदगी में कोई कीना ना हो, मेरी जिंदगी में कोई बुग़्ज़ ना हो। मेरी जिंदगी पाक और साफ और जलाली, हर एक के लिए भलाई, हर एक के लिए बेहतरी, हर एक के लिए। जिस तरह मेरा खुदा सब पर मेहरबान, इस तरह हम भी सब हर एक पर मेहरबान, हर एक के लिए नरम दिल, हर एक के लिए जलाली हाथ, हर एक के लिए करम हाथ, खुदा रब्बुल फाज के साथ चलते बढ़ते और खुदा के नाम को आगे फैलाते हुए बढ़ते चले जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने खुदा के आगे झुकें और उससे कहें, खुदा आज के बाद कदूस कदूस रब्बुल फाज, तेरा बंदा दिल की गहराई से तेरा इस कलाम के लिए, तेरी सारी अनमोल मेहरबानियों, बरतों, बख्शों, रहमतों के लिए और इस जिंदा कलाम के लिए जो तूने बनी इंसान के साथ प्यार किया और बनी इंसान को अपना बेटा बेटी बना लिया, और तेरी सारी अनमोल मेहरबानियां, बरतें, तरस, करम, फजल सब कुछ तूने किया। तूने कहा बनी इंसान से वादा किया, मैंने तुझे सर कहा तुम नहीं, तेरा हाथ ऊपर करेगा नीचे का नहीं, तू कर्ज देगा कर्ज देगा नहीं। इसलिए तेरे सारे बेटे बेटियां बरकत पाएं, खुशी पाएं, शादवानी पाएं, और जो खुदा बेरोजगार हैं बेरोजगार को रोजगार दे दे,
जो बीमार है यीशु मसीह का कामिल शफा पाए। बहुत सारे लोग कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। I touch them, heal them right now. एक बेटा है अमेरिका में, इब्राहिम, यीशु मसीह कोरोना वायरस से कामिल शफा हो जाए। उसका ताया है भाई रशीद, उसका फालज का अटैक हुआ है। खुदा यीशु मसीह कामिल चंगाई पा दे। अपनी कलीसिया में कोई ब्रेस्ट कैंसर है किसी बहन को, खुदा उसकी ब्रेस्ट कैंसर को दूर कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। किसी की आंखों में बड़ी चुभन होती है, खुदा अपना जलाली हाथ आपकी आंखों के ऊपर बढ़ा रहा है, आपकी आंखों की रोशनी डबल कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। किसी को माइग्रेन पेन होती है, बड़ी सीवियर पेन होती है, अटैक होता है, टच देम, हील देम राइट नाउ। थैंक यू लॉर्ड, तू कुदरत वाला खुदा है, तू जलाली बादशाह, तेरे हाथ दूर और नजदीक का खुदा, तेरे हाथ सब पर बढ़ गए। और खुदा नाम, तू सबके नाम जानता है, सबको बनाम पहचानता है। इसलिए तेरी पूरी कलीसिया पर, तेरे लोगों पर ये कलाम पूरी दुनिया में जाए, जो भी सुने ईमान लाए, जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए, और पूरी दुनिया में तेरे नाम को जलाल मिले। तू जल्द आए और हम अपनी आंखों से तुझे उतरता हुआ देखें, और तुझे दंदन के, तुझे मुबारक के, तेरी जायदा के करे। ये तमाम कौमों के लिए रिहाई मांगता है, तमाम कौमों के लिए खुदा अच्छाई मांगता है। सारी की सारी दुनिया की सारी कौमें तुझे कबूल कर रहे। हर धरती का इंसान तेरे आगे झुके, सीधा करे, हर जबान तेरा इकरार करे और घुटने टेके और कहे कि तू जिंदा खुदा रब्बुल फाज, जिसने कौमों को बनाया, और वो खुदा हर कोई तौबा करे, निजात पाए, जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। ये सब कुछ तेरे आला बुलंद अजीम कुदरत वाले नाम खुदा यीशु मसीह नाम के वसीला से खुदा के लोगों ने कहा, खुदा यीशु मसीह नाम में आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे, सलामती पाओ, बरकत पाओ, खुशी से नहाल हो जाए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, आमीन।